Hello my dear students, how are you all? Let's continue our chapter 17, part 2, Forests are Lifeline. Okay, let's start the next topic, that is the ecosystem of forest. In this topic, we will discuss what is ecosystem. Ecosystem is basically living things, when living things and the environment, when they combine together. Now what are living things? That means here the meaning is plants, animals, decomposers, they all are living, count in the living things. So when they combine with the environment. Now what is environment? Like soil, air, water, सन, एटमोसफेयर, इन सब से जब कंबाइन होते हैं अपने सराउंडिंग्स के साथ, देन दे फॉर्म एन इकोसिस्टम. नाउ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स, दैट इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड decomposers. Now what are producers? Producers, अगर आप वर्ड को ही सुने तो that means which produces, जो आपको प्रोड्यूस करके देता है. दैट मीन्स दैट नाउ अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एक ही एग्जांपल हमारे सामने आता है, दैट इज ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते. दे प्रोड्यूस और यू कैन से दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सराउंडिंग्स. वो किसी से मांगते नहीं खाना, कुछ नहीं करते. दे जस्ट डिपेंड अपॉन देयर सेल्फ ओनली. इज इट ओके? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स. उनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. एंड दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ photosynthesis. Is it okay? Now next type is consumers. Consumers are what? They do not prepare their own food. They just dependent upon animals or plants. या तो plants पे dependent होते हैं या animals पे. These organisms are called as heterotrophs. Secondly, consumers are of 2, 3, 4 types like herbivores. Herbivores जो हैं they fully dependent upon plants. यानी they are called as plant eaters. If we talk about carnivores, they eat flesh of other animals, that we know that. यानी कि next is omnivores. Omnivores depend upon plants as well as animals. दोनों पे dependent करते हैं. Now if we talk about scavengers, scavengers depend upon dead and decaying point. That means only animals. जो dead and decaying animals होते हैं उनको खाते हैं scavengers. Okay? That means that those animals which are left over by लायन, टाइगर, ये लोग छोड़ देते हैं तो वो लोग then scavengers will eat them. Okay, like wolf, vultures, jackals, these are called as scavengers. Now come to next is decomposers. Decomposers now break down that food, that leftover food which is on the forest floor. That is break down the dead matter into and converted it into humus. ह्यूमस पे चेंज कर देते हैं. अब वो ह्यूमस किस में मिक्स हो जाती है? That will mixes with the soil. Is it okay? And again it will go into the plants. Taken by the plants, soil में nutrients जब mix हो जाते हैं, then the plants will take them. Is it okay? तो decomposers क्या करते हैं? Dead and decaying matter को that will convert them into a humus. And the decomposers are what type of decomposers? Like worms, bacteria, fungi, mushrooms. These are all called as decomposers. Now next is food chain and food web. अभी जो मैंने आपको इकोसिस्टम एक समझाया टॉपिक, दैट इज बेसिकली फॉर these two things, food chain and food web. Now food chain is what? Food chain is basically the flow of energy in an ecosystem. Ecosystem में flow of energy in one process, the sequence of organisms through which the energy flows. अब ये एनर्जी कैसे फ्लो होती है? दैट मीन्स वी कैन से दैट द सीक्वेंस मीन्स इन विच अ प्रोड्यूसर, दिस इज अ प्रोड्यूसर, दिस इज अ ग्रीन प्लांट, दिस इज अ प्रोड्यूसर that is eaten by herbivores. Now this herbivores, that means it is a grasshopper, this is eaten by or you can say preyed upon by किससे थ्रू? frog ने इसको खाया, that is a carnivores. And this is a frog is again preyed upon by hawk. That means a chain is there कि plants को एक ने herbivores ने खाया, then herbivores is eaten by carnivores or you can say omnivores जो भी है, that means and another animal. ठीक है? This animal is again eaten by another animal. So that creates a chain that is basically called as
फूड चेन, दैट मीन्स एनर्जी इज फ्लोड. नाउ अब ये एनर्जी कहाँ से फ्लो हुई? दिस सन गिव्स एनर्जी टू प्लांट, plant gives energy to this grasshopper, this grasshopper gives energy to frog, and frog gives energy to hawk. Ultimately जो sun is a source of energy है that will transfer to hawk. Is it okay? Now we'll come to food web. What is food web? Web, अगर हम web word को देखें, what is the meaning of web? Web is basically a जाल, एक जाल होता है जो ये हमारे पास जाल की फॉर्म में. अगर हम बहुत सारी फूड वेब चेन, नाउ व्हाट इज फूड वेब? अगर मैं फूड वेब की बात करूं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन्स. अगर मैं इन फूड चेन्स को, बहुत सारी फूड चेन्स को मैं इकट्ठा कर देती हूँ, एक कॉम्बिनेशन बना देती हूँ, देन इट बिकम्स अ फूड वेब. इज इट ओके? नाउ फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections. अगर मैं बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स पे इनको कनेक्ट करती हूँ, then I will form a among us different organisms, that is a food web. That means many food chains, बहुत सारी. अब ये एक है, जैसे अगर if you look at this diagram, now what is here? This is a flower. Flower is eaten by rat also, flower is eaten by rabbit also. Now that's this rat, this is eaten by snake, so and snake is eaten by hawk. That means this portion is a one food chain. Now I'll talk about rabbit. This flower is eaten by rabbit. Now this rabbit is eaten by hawk. So this portion is a one food chain. Now if I'll talk about again flower, flower is again eaten by rat. This rat is directly eaten by hawk. That means it is a one again food chain. Three food chains are there. Now come to fourth food chain. This is again a flower. This is again eaten by rabbit. This rabbit is eaten by snake directly. So this is one of the other food chain. That means four food chains in this diagram. Four food chains are interlinked. अगर मैं ऐसे और भी ज्यादा food chains जो होती हैं वो interlinked हो सकती हैं. So that means it is called as a food web. Now flow of energy in organisms. फ्लो ऑफ एनर्जी मीन्स अभी डिस्कस करके आए हैं हम लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी, दिस इज द सन, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हेयर टू प्रोड्यूसर्स, दैट मीन्स प्लांट्स. नाउ दिस एनर्जी इज टेकन बाय कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स लेते हैं ये एनर्जी. कंज्यूमर्स मीन्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, एंड नाउ दिस एनर्जी गोज टू डिकम्पोजर्स. यानी कि ये सन की ही एनर्जी है. दैट येलो लाइन शोज दैट दिस इज अ सन एनर्जी. That is the flow of energy. Or plants also give energy to decomposers, or you can say decomposers जो है they also take energy from plants also. Direct plants के ऊपर भी वो decompose करते हैं कि नहीं? They break down the dead and decaying plants also, so they will get energy, direct energy from plants also, and also they will get energy from consumers. Then this energy, these decomposers, now what they do? They change themselves. They change the dead and decaying matter into inorganic nutrient form. न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं, यानी ह्यूमस बना देते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं. अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ह्यूमस चेंज होती है, दैट विल मिक्सेस इन द सॉइल. सॉइल के साथ चेंज हो जाती है, मिक्स हो जाती है. ठीक है. दीज न्यूट्रिएंट्स नाउ टेकन अप, अब फिर से वो वाटर के साथ मिक्स होकर they will taken up by the producers. This is the cycle. This is basically called as nutrient cycle. This is taken by plants again. Up plants again, the same thing is there, that consumers will take, then the producers will take. This is the again the cycle. In this way the cycle will go on. Next is dynamic living entity. Now by harboring greater variety of, आपको पता है फॉरेस्ट में बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट. तो कोई एक वो नहीं है कि एक ही प्लांट को खाना है किसी, या दूसरे प्लांट को ही वो एनिमल खाएगा. So by harboring greater variety of plants, the forest provides greater opportunities, many opportunities for food and habitat for the herbivores. Herbivores के लिए बहुत चीजें हैं वहां पर. Is it okay? Then larger number of, it means the larger number of herbivores are there, and if the larger number of herbivores means increase the availability of food for carnivores. If there are larger number of herbivores, then means carnivores के लिए भी food variety बहुत सारी हो जाएगी.
नाउ द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स इन फॉरेस्ट टू रीजनरेट। दैट मीन्स अगर एक प्लांट अगर फिनिश होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा है उसके साथ का तीसरा। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो इफ कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को प्रे किया तो दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम द न्यू अदर हर्बीवोर्स आर ऑल्सो देयर। तो दैट मीन्स देयर इज अ रीजनरेशन एंड ग्रोथ is available, is there in the forest. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients that we have discussed, ठीक है, to the growing plants in the forest. This is called as forest is a dynamic living entity. यानी वहां पे कभी भी कोई चीज फिनिश नहीं होती है. It will be in a cycle. So each and everything, either they are producers, consumers, decomposers, they are wide variety. They are present in wide variety in forest. Is it okay? Next is interdependence of plants and animals in forest. अब plants जो है वो animals पे depend रहते हैं, animals जो है वो plants पे depend रहते हैं. How? If we talk about कि plants animals पे कैसे depend रहते हैं, तो plants that means first carbon dioxide. Plants taking carbon dioxide from the atmosphere. एंड एटमोस्फेयर से विच इज रिलीज्ड बाय एनिमल्स. एनिमल्स रिलीज करते हैं तो दैट मीन्स एनिमल्स ने दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकन बाय प्लांट्स इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सेकेंडली पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज व्हाट? अब एनिमल्स जो हैं और यू कैन से इंसेक्ट्स, बर्ड्स, दे सिट ऑन प्लांट्स, ठीक है, फ्लावर्स पे बैठते हैं. दे टेक देयर नेक्टर, उनका नेक्टर लेते हैं. तो जो उनके अंदर सीड्स होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, दे स्टिक टू देयर बॉडी एंड नाउ आफ्टर व्हेन दे फ्लाई देयर फ्रॉम देयर दे स्प्रेड pollen grains. तो दैट मीन्स pollination is there. Similarly, dispersal of seed and fruits. When the animals they eat the fruits, अगर आपने कभी बंदर को खाते हुए देखा है तो जब वो खाता है तो वो क्या करता है? फैलाता रहता है थोड़ा साथ साथ. देखा आपने? जहां खाया वहां फैला दिया. ऐसे आपने और एनिमल्स को भी देखा होगा. तो वो क्या होता है? दैट इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड. उससे ओवर क्राउडिंग नहीं होती प्लांट्स में, फॉरेस्ट में ओवर क्राउडिंग नहीं होती. देन न्यूट्रिएंट्स. आप नहीं जाते वहां पे सीड्स लगाने. न्यूट्रिएंट्स यू विल गेट फ्रॉम डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं कि नहीं प्रोवाइड. तो दैट इज न्यूट्रिएंट्स. इज इट ओके? नाउ डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स. अगर मैं डिपेंडेंस की बात करूं एनिमल्स ऑन प्लांट्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स क्या देते हैं एनिमल्स को? फूड प्रोवाइड करते हैं. सेकेंडली शेल्टर. शेल्टर मीन्स कि वो उनके लिए घर बन जाते हैं. हाउ? जैसे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसके अंदर अपने नेस्ट बना सकते हैं बर्ड्स, तो उनके लिए शेल्टर का काम करते हैं. वहां उनके एग्स रख सकते हैं, वहां वो रहते हैं आके, ठीक है. इंसेक्ट्स अपने बना सकते हैं. देन एनिमल प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस which is inhaled by animals. Similarly, shade and protection. These big trees, ऐसे बड़े बड़े trees जो हैं इसमें आकर plants जो animals जो हैं they will lie down, रहते हैं, बैठते हैं, because they give the plants give them shade, छाया देते हैं. सारा दिन सन की धूप में तो नहीं रह सकते सन, ठीक है. तो that means and protection. अगर हम protection की बात करें तो आपके डियर्स हैं जो या फिर आपके लायंस हैं, they hide themselves in the bushes. अपने आप को वहां पे छुपाते हैं तभी वो आगे देख सकते हैं. तो दे हाइड देम और दे प्रोटेक्ट देम. इज इट ओके? तो दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स. इज इट ओके? नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफॉरेस्टेशन. आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, फॉरेस्ट कट रहे हैं. वाई द फॉरेस्ट? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. दैट मीन्स लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर यूज, यानी कि ह्यूमन बींग्स ही कट कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. नाउ कॉजेज क्या है उसके अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज द इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ वुड. वुड की डिमांड बढ़ रही है. किस लिए बढ़ रही है? टिम्बर मार्केट के लिए बढ़ रही है. दैट इज द टिम्बर मार्केट मीन्स कमर्शियल वुड. जब वुड कोई कमर्शियल लेवल पे आ जाती है तो उसको हम टिम्बर वर्ड यूज कर देते हैं. इज इट ओके? देन लॉग फ्यूल वुड बन रहा है आपका, उसके लिए भी वुड की जरूरत होती है. तो नेक्स्ट इज माइनिंग की फैक्ट्रीज बन रही हैं, उसमें आपकी वुड यूज होती है, फॉरेस्ट यूज होते हैं. देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है.
वी नीड मोर हाउसेज, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, वी हैव टू कट द फॉरेस्ट। देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैंड भी हमें चाहिए बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वी नीड मोर वैरायटी ऑफ और मोर फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, so we have to, agriculture means we have to, what we have to do, we need more agriculture land. Is it okay? For that purpose we have to cut the trees. Next is that what will happen if forest disappear? क्या होगा अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और यू कैन से खत्म होने लग जाएंगे. What will happen if forest disappear? The amount of carbon dioxide will increase. आप देख रहे हो ये फॉरेस्ट है, धीरे धीरे कट होने शुरू हो गए, यहाँ पर फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, नाउ इट विल बी कटेड डाउन. तो व्हाट विल हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके व्हीकल से इंक्रीज होती है, निकलती है, और यू कैन से आप भी रिलीज करते हो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल इंक्रीज इन द एटमोस्फेयर एंड इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग. उससे क्या होगा, आपके ग्लोबल वार्मिंग होगी. सिमिलरली अगर आपकी एब्सेंस ऑफ ट्रीज में प्लांट्स एनिमल्स जो हैं, अब आपके एनिमल्स को भी डैमेज करेंगे, वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा, यानी एनिमल्स जो हैं वो आपके बाहर आने लग जाएंगे, सिटीज में आने लग जाएंगे जब उनको फॉरेस्ट नहीं दिखाई देंगे. तो दैट मीन्स द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, एनिमल विल नॉट गेट देयर प्रॉपर फूड एंड शेल्टर. इज इट ओके? नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट एब्सेंस ऑफ ट्रीज, अगर मैं ट्रीज की बात करूं, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज क्या होगा, फ्लड्स विल बी देयर. पहले तो लेस रेनफॉल होगा, देन फ्लड्स विल बी देयर. इज इट ओके? The deforestation will endanger our life also because animals will come towards us and environment. Then this means that this will happen. Soil erosion will be there. We will not get proper food. That means forests will not be disappear. Forest disappear नहीं होनी चाहिए. Is it okay? Next we have to conserve. इसके लिए हमें क्या करना होगा? We have to conserve the forest. Forest means it is a practice. Basically, it is a practice of conserving. That means planting more and more trees and maintaining the forested areas for the sustainability or for future generation. Future generation के लिए बचा कर रखने के लिए ये चीजें कि फ्लड्स ना आए, सॉइल इरोजन नहीं हो, क्लाइमेटिक चेंजेस ना हो, एटमोस्फेयर ठीक बना रहे, we have to conserve forest. हमें फॉरेस्ट को क्या करना है, कंजर्व करके रखना है. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विच मेजर्स वी हैव टू यूज, लाइक एफॉरेस्टेशन, वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. रिफॉरेस्टेशन मीन्स आपको फॉरेस्ट को अगेन सेट करके ही रखना है. नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेस्ट अगर खत्म होते जाएंगे तो बहुत सारी क्या हो जाएगी आपकी, दैट मीन्स बहुत सारी फॉरेस्ट जैसे कटिंग होती है फॉरेस्ट की, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज देयर, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फॉरेस्ट फायर्स होते हैं. ठीक है, तो इफ फॉरेस्ट आर देयर, इफ प्लांट्स आर देयर, देन नो फॉरेस्ट फायर्स विल बी देयर. देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फॉरेस्ट. और क्या होगा, हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, ढंग से उनको यूज करना है, एंड फॉरेस्ट को भी यूज करना है नेचुरली है. देन कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन. And the last and most important step is that we have to control on our population. Population control करेंगे तो हमें ना इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगानी होंगी, ना हमें रोड्स, ना कंस्ट्रक्शंस, nothing will be there. We have to just plant plants. We have to plant we have to plant trees, more and more trees. ठीक है, so we have to conserve forests. This is all about this chapter. Thank you, students.